A very fresh morning to all my viewers. Today we will be discussing an important topic of chemical bonding, that is bond order. Questions are surely asked from this topic both in the board exam as well as entrance exams. So first we will discuss some important points about the bond order. What is bond order? Then we will discuss the tricks to solve the questions based on bond order. Now bond order is a theoretical concept, means it is not experimental quantity, it is a theoretical concept. Second, it is calculated using molecular orbital theory, according to which bond order is equal to half Nb minus Na, where Nb is the bonding electrons, number of bonding electrons, and Na is anti-bonding, number of anti-bonding electrons. So generally it is calculated using molecular orbital theory, which you will be learning later on. But we will be solving the questions based on bond order using some other trick, not the MOT. Now what is bond order? Bond order is defined as number of bonds formed between two atoms in a molecule. Example, suppose you have O2 molecule. So how many bonds are there between O? There are two bonds, that is there is a double bond. So what is the bond order here? Bond order is 2. Clear? So we can write another point is, so bond order is defined as number of bonds formed between two atoms in a molecule. कोई भी दो एटम होंगे उनके बीच में जितनी bonds होती है, और number of bond pairs, number of bonding electrons divided by 2, that is bond order. Now if there is a single bond between two atoms, example FF, there is a single bond between two fluorine atoms, bond order is 1. If there is a double bond between two atoms, example we have just seen O double bond O, bond order is 2. If there is a triple bond between two atoms, example is N triple bond N, that is N2, then bond order is 3. So if there is a single bond, bond order is 1, double bond order is 2, triple bond order is 3. Now next important point is bond order can be integral value or it can be fractional also. So certain conclusions can be drawn based on whether the bond order is integral value or it is a fractional value. So what are the conclusions? If bond order is positive and integral value, if it is a positive and integral value, molecule or ion is stable. That means it is a stable molecule or ion. Clear? If bond order is 0 or negative, that means the molecule or ion is unstable. It is unstable and do not exist. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज़ हाईली अनस्टेबल. नाउ इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव but it is fractional, positive but fractional, and it is greater than 1. Clear? If it is positive, fractional or greater than 1, that means suppose it is plus 3 by 2, plus 5 by 2, 5 by 3, these are the different values. So अगर bond order positive है और fractional है, that means resonance must be taking place in that molecule and you have to find out the bond order based on resonance. I hope it is clear. So if bond order positive है और integral है तो molecule stable होगा, अगर 0 है negative है तो unstable होगा. अगर positive है और fractional है मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है बट ग्रेटर देन 1, इट इज़ 1.5, 1.33, 1.75, इस तरह से वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस इन दैट मॉलिक्यूल. एंड वन मोर थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज
इफ बॉन्ड ऑर्डर इज +½ अगर 1 से कम है, फ्रैक्शनल है और पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज +½ तो मॉलिक्यूल और आयन अनस्टेबल होगा, इज अनस्टेबल बट इट विल एग्जिस्ट, अनस्टेबल होगा पर एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल इज H2+, He2+, these are the examples in which case bond order is +½ उस केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा बट इट विल एग्जिस्ट। These are certain points about the bond order. Now we will discuss 2 tricks here, tricks for diatomic molecules or ions. Example are O2 2-, Cn-, CO, N2. These are the cases where it is diatomic, 2 atoms है, it may be molecule or it may be ion. In such case, what trick you have to use? You have to start from nitrogen. See, nitrogen has triple bond in it, N2 has triple bond, and for triple bond what is the bond order? Bond order is 3. ठीक है, अब यहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन N2? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अगर N2 में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो 7 + 7, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14. Not the valence electrons, total electrons. So total electrons are 14. So we will start from here 14. ठीक है, 14 से इधर चलो 15, 16, 17, 18, 19 and 20. This side moves 13. पीछे की तरफ जाएंगे 12, 11, 10, 9 and 8. Clear? Between each number there will be a difference of 0.5. तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से डिक्रीज करते जाओ. सो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2.5. 16 के लिए 2. बिटवीन 2 नंबर्स देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ 0.5 बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर? 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा 1.5, 18 के लिए आएगा 1, 19 के लिए आएगा 0.5, 20 के लिए आएगा 0. इसी तरह इधर जाओगे 3 से डिक्रीज करो 0.5, 13 के लिए आएगा, आई विल राइट विद अनदर स्केच. 13 के लिए आएगा, आई एम राइटिंग हेयर, 13 के लिए आएगा 2.5, 12 के लिए आएगा 2, 11 के लिए आएगा 1.5, 10 के लिए आएगा 1, 9 के लिए आएगा 0.5, 8 के लिए आएगा 0. This is one trick. So if you know the bond order of nitrogen, you have to just remember the bond order of nitrogen. Nitrogen has 14 electrons and it has bond order of 3. तो जितने भी तुम्हें किसी भी नंबर के लिए पूछा है, count the total number of electrons and then you can easily find the bond order without doing any calculation. Clear? Now another trick is for the numbers less than, if the numbers are less than 8, 20 से ज़्यादा नहीं पूछते, so it is not asked above 20. अगर नंबर less than 8 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 and here we will start from 5 and 6. ठीक है, 4 के लिए लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर 0, तो आई विल राइट विद अनदर स्केच. 4 के लिए लेते हैं 0, 0 इज़ द बॉन्ड ऑर्डर. 5 के लिए हो जाएगा 0.5, इसके लिए हो जाएगा 1. हियर यहाँ भी 0.5 और 2 के लिए हो जाएगा 1. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस ट्रिक BA फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8. BA देन ट्रिपल B एंड देन ट्रिपल A. यहाँ पे B और A क्या है? दिस B, triple B and triple A. Here B is bonding electrons, A is anti-bonding electrons. So this is a trick for the MOT theory. तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ईच विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो सपोज यू हैव टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 के लिए निकालना है He2, इट हैज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4. तो कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 0. दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0. सो यू कैन यूज दिस ट्रिक
This trick is more beneficial if you have electrons varying from 8 to 20. 8 से अगर electrons हैं 20 तक, so you can use this trick to find out the bond order easily. Now we will apply this concept to certain questions. First we will find the total number of electrons. Clear? Electrons. O2 में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16. यहाँ पे O2 में 16, 2 माइनस चार्ज मीन्स यू हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे 18. O2 प्लस 18, यहाँ पे 16 था, 16 प्लस चार्ज मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, तो ये हो जाएगा 15. O2 माइनस, सो 16 वाज इन O2 में 16 थे, एक माइनस चार्ज, मतलब माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, प्लस 1, 17. So number of electrons 16, 18, 15 and 17. So what will be their bond order? You can write easily now. Can anyone tell the bond orders in this? O2 16. See, नाइट्रोजन के लिए 14, 14 से 15, 3 से 2.5, 2.5 to 2. So here bond order is 2. You can use this table. Number of electrons 16, bond order 2. 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 और 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5. सो दीज आर द बॉन्ड ऑर्डर्स. क्लियर? नाउ you have got the bond orders. Now you can compare their stability as well as bond length based on their bond orders. Just now I will tell. First we will calculate the bond order here. Nitrogen 14 means bond order is 3. N2 plus 14 minus 1 प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो 14 थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5. N2 माइनस, सो 14 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर प्लस 1, 15. ठीक है, 15 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5. सो हियर 2 बॉन्ड ऑर्डर्स आर सेम और एक अलग है. ठीक है, अब नाउ हाउ इज बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड टू स्टेबिलिटी? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उसे ब्रेक करने के लिए. सो बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स. तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ मतलब जो डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, दैट विल बी शॉर्टर. सो यू कैन बी आस्क्ड टू कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर, यू कैन बी आस्क्ड टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी बिटवीन डिफरेंट आयंस, you can be asked to compare the bond lengths. So this is a trick for diatomic molecules. Now we will see the trick for polyatomic molecules or ions. Now trick for polyatomic molecules or ions, if there is no resonance. Resonance तब consider करेंगे when it has equivalent resonating structures. अगर equivalent होंगे तब उसे consider करेंगे resonating structures. So first example I am taking here CO2. ठीक है, C सेंट्रल एटम है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल मेक डबल बॉन्ड विथ कार्बन. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. नाउ यू आर आस्क्ड व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर. देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इंडिविजुअल बॉन्ड्स के लिए निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकालते. सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस CO बॉन्ड, इट इज 2. यहाँ पे कितना है 2, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2 फॉर CO बॉन्ड. ठीक है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल बॉन्ड एंड नॉट फॉर द होल मॉलिक्यूल. इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ HCN बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ HC. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, टर्मिनल एटम है ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये बनाई. अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है CN बॉन्ड का, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1. So carbon hydrogen bond order is 1, carbon nitrogen bond order is 3. Clear? Then some other example, if you can take acetylene. Acetylene is C triple bond C H H. ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 1. सो इफ देर इज नो रेजोनेंस यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम द बॉन्ड्स. उसमें स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस रॉट स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्ड्स काउंट करो कितनी है, यू विल नो अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर? बट इफ देर इज अ रेजोनेंस,
then bond order is equal to total number of bonds between two atoms upon total number of resonating structures. We will see it with an example. Suppose I am taking carbonate ion CO3 2 minus. ठीक है बेटे, पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें कार्बन है, देर आर 3 ऑक्सीजन बनाओगे, ठीक है. नाउ देर इज 2 नेगेटिव चार्ज, और 2 नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, ऑक्सीजन एटम्स पे होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाया. ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव चार्ज आ गया 7, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. हियर ऑल्सो ऑक्सीजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इट विल मेक 1 बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. तो सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. नाउ कैन यू सी देयर मे बी रेजोनेंस हियर. रेजोनेंस तब होगा व्हेन देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये डीलोकलाइज हो सकते हैं दूसरे ऑक्सीजन पे. इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे. सो देयर मे बी अ डीलोकलाइजेशन एंड यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है. अब एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, ये पाई डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे बना दिया. एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा जिसमें यहाँ पे O माइनस है, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ गया. सो दीज आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करो और डॉटेड शो कर दो. डॉटेड मीन्स डीलोकलाइज हो गए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स. दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है. नाउ यू हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स. एक कार्बन और ऑक्सीजन लो, उसके बीच में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितनी बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर. 2 + 1 3 + 1 2 + 1 + 1. Total number of resonating structures are 3. So it will be 5/3. So you will get it will be 1.66. Sorry, it is 4/3. 4. Clear? So it will be 1.33. 1.33. Clear? So this is the bond order. We will see some more examples based on this. Now see these structures. Now we will draw the structure. Phosphorus central atom में there are 4 oxygen and 3 negative charge. 4 oxygen बनाओ और 3 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लगा दो 3 ऑक्सीजन पे. जिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा दोज ऑक्सीजन विल बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक और चाहिए. सो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ कैन यू सी देयर इज विल बी ए रेजोनेंस हियर. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे बेटा, जितने ऑक्सीजन होंगे. सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स. एक स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो, 2 + 3 + 4 + 5. टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4. सो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, इट विल बी 1.25. क्लियर. तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, जितने ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे. तो टर्मिनल ऑक्सीजन काउंट करो, वो तो हो गए टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बराबर. एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 स्ट्रक्चर, ठीक है. सो इट विल बिकम सिंपल. ClO4 माइनस, देखो 4 ऑक्सीजन है एंड देर इज ओनली 1 नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा एंड देयर विल बी 3 डबल बॉन्ड्स, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड. सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर, टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7. टोटल ऑक्सीजन 4. 7/4 it will be 1.75. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर. सल्फेट के लिए कैलकुलेट करो. सल्फर सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन देर आर 4 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाओ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, दे विल बी अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड. बॉन्ड ऑर्डर, नाउ फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 + 2 4 5 6 6. टोटल ऑक्सीजन 4. सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5.
क्लियर। सिमिलरली सिलिकन, सिलिकन देखो, सिलिकन है सेंट्रल एटम, 4 ऑक्सीजन एंड 4 नेगेटिव चार्ज, सो ऑल द ऑक्सीजन आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है तो सब पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक बॉन्ड बनाएंगे. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर? देयर विल बी नो रेजोनेंस हियर बिकॉज देयर इज नो पाई बॉन्ड हियर, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. हर बॉन्ड के लिए 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा. So this way you can find out the bond order. Now we will check some questions which are based on bond order and they have come in the entrance exams like JEE, AIEEE. See the first question. The species having bond order different from CO. But in case of isoelectronic species, this is another trick. If you have isoelectronic species, isoelectronic means same number of electrons, then the bond order will be same. क्लियर. सो इफ़ यू हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा. तो इसमें पूछा है बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO. तो CO में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट ऑक्सीजन, तो 6 + 8 कितने हो गए? 14. ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा. इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 7 + 8 + 1 16 हो गए. इसमें 6 + 7 + 1 14. इसमें हो गए 7 + 8 - 1 14. इसमें भी 14. सो 3 में 14 हो गए, इसमें 16 है, सो इट विल बी द आंसर. तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं दी हुई हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. सो इन दिस देर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स, अदर्स हैव ऑल 14. तो 14 का जिनका होगा उनका बॉन्ड ऑर्डर CO के बराबर होगा. CO का स्ट्रक्चर होता है C++O. इट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3. तो इन सब में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसमें अलग होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. सी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड फाउंड द बॉन्ड ऑर्डर्स इन ऑल दीज मॉलिक्यूल. O2 में 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, O2- में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है?